So students, welcome again. I am your Safik sir. So आज के lectures में हम कुछ circuit के बारे में problem discuss करेंगे. So today's lectures will be mainly based on problem solving techniques. Okay? तो कुछ circuits जो बहुत सारे common circuits हैं, हम उसको पहले समझ लेते हैं. Okay? Then we'll be trying the bigger one. Last class में हम लोगों ने solve किया था कुछ circuits. As let us start with a simple circuit. Let me consider a circuit. There is a resistance of 3 ohm, another resistance, battery. There is a resistance. 4.5 volt. This is 3 volt, 10 ohm, 6 ohm. This is the circuit. Okay, we have to find current through suppose 10 ohm. Okay, find current across 10 ohm resistance. 10 ohm resistor. तो इसका करंट हम कैसे निकालेंगे? इसका करंट हम कैसे निकालेंगे ये देखना जरूरी है हम लोग के लिए. सो इसको निकालने के लिए हम बहुत सारे टेक्निक यूज कर सकते हैं. किरचॉफ वोल्टेज रूल भी यूज कर सकते हैं, क्लियर, और किरचॉफ जंक्शन रूल भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो इक्विवेलेंट वाला सर्किट भी हम यूज कर सकते हैं. इस सर्किट को हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे 3 ओम, 10 ओम, मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया, ठीक है. फिर यहाँ पर आ गया आपका ये 4.5 वोल्ट वाला बैटरी, ओके. ये साइड में आ गया आपका 3 वोल्ट वाला बैटरी, और बीच में जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड कौन सा है? 6 ओम. तो अब ये सर्किट देखने में उस सर्किट से ज़्यादा सिंपल है. ओके, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. सपोज करंट इन दिस सर्किट इज I1, ये सर्किट में करंट I2 है, देन करंट पासिंग थ्रू 6 ओम विल बिकम I1 प्लस I2. फिर ये साइड से तुम्हारा I1 आ जाएगा, उस साइड में तुम्हारा I2 चला जाएगा. सो वी कैन, ओके, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट मी अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज रूल. Let me call this point A, B, C, D, E, F. So considering loop, कौन सा लूप कंसीडर करते हैं? चलो पहले ये वाला लूप कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर लूप A, B, E, F, A, A, B, E, F, A, ये लूप. ओके, किरचॉफ वोल्टेज रूल किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से शुरू करते हैं. चलो F से शुरू करते हैं. नेगेटिव पॉजिटिव, देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल. व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल? 4.5. We are going in the direction of current. In the direction of current there will be a potential drop. Okay, इसके बारे में मैंने अपना last 2 lectures में डिटेल डिस्कस किया. Okay, so I'll be little fast in solving questions today. So in this direction we are going from in the direction of current. So there will be in the direction of current. Current flows from high potential to low potential. So there will be a drop. Drop कितना होगा? Current into resistance. Drop मतलब minus 3I1. Then again we are going from B to E in the direction of current. There should be a drop. How much is the drop? Minus 6 I1 plus I2. So where you have reached? Point E and point F are having same potential. So we started from one point, we are returning back to the same point. So potential drop across the resistors, potential, the difference in potential, or I can call the change in potential across different elements like different cells and resistances present in a closed loop is equal to 0. अगर हम सारे potential changes को add कर देंगे, okay, जैसे potential drop across this battery, potential change across this battery, potential change across this resistance plus potential change across this resistance, sum of all these potential changes will become equal to 0. मेरा last lecture जरूर देखना, उसमें मैंने किरचॉफ जंक्शन रूल एंड वोल्टेज रूल को एक्सप्लेन किया. उस लेक्चर्स को देखने के बाद ही यहाँ पर आना, ठीक है. तो दिस विल बिकम इक्वल टू 0 बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम. सो हमें यहाँ से कितना मिलेगा? 4.5
I can call it as 9/2 also. 4.5, 3i1 minus 6i1 will give you 9i1. Okay, and minus 6i2. This is equal to 0. चलो let me call it as equations 1. कितना अननोन है? 2 अननोन है, तो मुझे 2 लूप्स का जरूरत पड़ेगा, 2 लूप्स का जरूरत पड़ेगा. अब मुझे द करंट अक्रॉस 10 ओम निकालना है, which is nothing but i2. So I can consider the second loop. कौन सा लूप कंसीडर करेंगे? कोई भी 2 लूप कंसीडर कर कौन सा कंसीडर करते हैं? बी सी डी ई बी. चलो बी सी डी ई बी ये वाला लूप कंसीडर कर लेते हैं. तो पॉइंट ई से शुरू करते हैं, पॉइंट ई से शुरू करते हैं. नहीं तो चलो आज अच्छा चलो पॉइंट ई से शुरू करते हैं, ई से वापस ई आ जाएंगे. तो पॉइंट ई से मैं जब यहाँ तक जाऊँगा, आई एम गोइंग अगेंस्ट करंट. सो अगेंस्ट करंट विल बी इंक्रीज इन पोटेंशियल. तो इंक्रीज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 6i1. मैं प्लस लिख रहा हूँ इसलिए. Then again across 10 ohm I am going against the current. Okay, current flows from high potential to low potential. When I am going from B to C, there will be increase in potential because C is at high potential, B is at lower potential. Current flows from high to low. So what is the increase? Increase मतलब plus कितना है? Current into resistance 10i2. Then I am going from positive to negative. There is a drop. There is a drop. What is a drop? Minus 3 volt. Where I have reached point D. D and E are same point. There is no potential difference between D and E. So I have started from E and I have returned back to E. So net potential difference would become equal to 0. तो ये मिल गया हमें सेकेंड इक्वेशन. 6i1 plus 10i2 minus 3v is equal to 0. 3 volt. इसको 3 यूज करते हैं बस. ओके, 3 ही यूज करते हैं. तो ये दोनों इक्वेशंस हैं. अब देखो कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो. ठीक है, 9i1 है, 6i1 है. अब इन दोनों इक्वेशन में से i1 या i2 किसी को एलिमिनेट कर दो, आपको i2 मिल जाएगा i1 एलिमिनेट करने से, और i2 को एलिमिनेट करने से i1 मिल जाएगा. ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. सो ये पार्ट आप खुद सॉल्व कर लो. ठीक है, डू दिस पार्ट बाय योरसेल्फ. द वैल्यू ऑफ i1 कितना होगा एंड द वैल्यू ऑफ i2. दो इक्वेशन को सॉल्व करना है. ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ. लेट मी मूव फॉरवर्ड विद सम अदर क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा लूप में सर्किट कंसीडर करता हूँ, जैसे ये वाला सर्किट. बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत सारे किताबों में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे. इस क्वेश्चन अगर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? ये 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 ओम. इसमें बहुत सारा क्वेश्चन they can ask you many questions out here. Okay, जैसे find current through 2 ohm resistor. फाइंड करंट थ्रू. ये जो 2 ohm रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा. ओके, सेकेंड थिंग दे कैन आस्क यू एनी कोई भी पॉइंट इसमें डाल दो, नाम डाल दो. जैसे मैं इसको डालता हूँ ए, दिस पॉइंट को बी, ए बी सी डी ई एफ जी और एच सपोज. Okay, find potential difference between कहाँ से कहाँ जाते हैं. चलो यहाँ से तक यहाँ तक जाते हैं. potential difference between A and E. find potential difference between A and E. A से तक हमें E तक जाना है. अब यहाँ पर एक बात याद रखना, करंट फ्लो होने के लिए किसी भी ब्रांच को क्लोज्ड होना जरूरी है. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क, दिस इज द कंप्लीट सर्किट. इसका कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है. ओके, सो अब देखो यहाँ से सपोज ए करंट I1 इज फ्लोइंग. ओके, वी कैन फाइंड करंट अक्रॉस 5 ohm and 10 ohm also. फाइंड करंट थ्रू 2 ohm. ओके, 2 ohm रेजिस्टर्स also about 5 ohm and 10 ohm सपोज, ये भी हम निकालते हैं.
current this way, suppose I1. अब this battery is giving I1 current, so it will demand I1 current back. Okay, इसका मतलब यहाँ से कुछ भी करंट यहाँ नहीं गया क्योंकि ये पार्टिकुलर क्लोज लूप है। बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही करंट आएगा। सिमिलरली यहाँ पर सपोज ये करंट I2 है, अगर ये करंट I2 है देन I2 will have to come back in a very simple manner. Okay, I2 will have to come back. Clear? So यहाँ से भी कुछ करंट यहाँ नहीं आएगा। तो ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है ना Z and F, दिस इज समथिंग लाइक ओपन टाइप। अगर मैं B और C को कनेक्ट कर दूं, हाँ तो ये क्लोज लूप बनेगा, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होना ओके तब संभव होगा। अभी फिलहाल यहाँ से यहाँ कुछ करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये पार्टिकुलर सर्किट क्लोज नहीं है, क्योंकि दिस बैटरी इफ गिव्स आउट सम करंट इट विल डिमांड द सेम करंट बैक फ्रॉम द अदर साइड। तो यहाँ पर फ्लो बैक होने के लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कहाँ से आएगा, नहीं आ सकेगा। इसीलिए करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, ना F से G तक करंट फ्लो होगा ना G से F तक फ्लो होगा। हाँ फ्लो हो सकता है अगर मैं और B और C को ज्वाइन कर दूं, तो ये एक पार्टिकुलर क्लोज लूप बन जाएगा। नाउ दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी क्लोज लूप, दे आर आउटसाइड द फर्स्ट क्लोज लूप, दे आर आउटसाइड द सेकंड क्लोज लूप। मैं इसको फर्स्ट क्लोज लूप कहूँगा तो ये इसका आउटसाइड में है, अगर इसको मैं सेकंड क्लोज लूप कहूँगा इसकी ये इसका आउटसाइड में है। सो ये एक पार्टिकुलर क्लोज लूप, दिस इज अनदर पार्टिकुलर क्लोज लूप, दिस गॉट something like if you neglect also the current here and current here will not get modified. Okay, so अगर इस पार्टिकुलर लूप को देखोगे, अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ करंट 5I1 इज इक्वल कितना है 10 वोल्ट। ओके, अगर लूप को देखोगे बिटवीन दिस टू पॉइंट एंड दिस टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो अक्रॉस दिस वन जितना पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस दिस वन पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही है। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 10 वोल्ट। सो ओके, नहीं तो ओम्स लॉ समझ लो, V इज इक्वल टू IR। ओके, सो यहाँ से तुम्हें I1 का वैल्यू मिल गया, I1 कितना है 2 एम्पियर। ओके, सिमिलरली अगर ब्रांच देखोगे यहाँ पर भी तुम्हें कितना मिलेगा 20 डिवाइड बाई 10। ओके, सिमिलरली I2 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 10। अगर ये लूप लूँगा मैं, ओके यहाँ से शुरू करूँगा, ओके माइनस टू प्लस 20, ओके माइनस 10I2 इज इक्वल टू 0। डिटेल करना है 20 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से तुम निकालोगे सो I2 इज नथिंग बट अगेन 2 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and E, तो I have got two ways to go from A to E. I can take this way or I can take this way, or this way also can be taken a long way. Okay, let us not take that. Okay, for practice you can do it by yourself, so I'll be showing you one of the easier method. Okay, let me go from A. Which path shall I take? Let me take this particular path. Okay, A to B, there is no potential difference between A to B. लेकिन अभी याद रखो, while going from A to E, total potential difference will not become 0 because this is not a closed loop. A and E is not forming any closed loop. A is a different point, E is a different point of the loop. So इन दोनों के बीच में potential difference 0 नहीं होगा. So let me call potential at A is equal to VA. Okay, then I am going in the direction of current. So there is a drop. Current flows from high to low. So there is a drop. Drop कितना है? Minus 5I1. Then I am going from positive to negative, high potential to low potential. There is a drop. How much is the drop? 5 volt. Across the resistor, there is no current, so there is no potential drop across 2 ohm. So where I have reached? Point F. Point F and point E are same, so this is the potential at point E. So VA minus VE will become how much? 5I1. How much was I1? 2 ampere. So 10 plus 5 कितना हो गया 15 volt. Okay, let's turn out the potential difference between the points A and E. Okay, this is another circuit you need to understand. Okay, let me go to the third circuit, another important circuit. Let me come to it. Right, circuits are easy,
Don't have to be panic if you see a complicated circuit. See it carefully. Somehow you will find out the solutions. Okay, जैसे मैं यहाँ पर एक करंट एक सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान का साथ देखना, ठीक है। Very common type of circuit. 2 ohm, 6 ohm. I am drawing the circuit in front of you so that you have a better feeling. Okay. If you see a ready-made circuit and you see a circuit getting drawn in front of you, okay, the circuit which is being drawn in front of you, that circuit appears to be little easier because you see each and every component carefully. Four ohm. Have you seen? Okay, this is 12 volt battery. These 2 points are grounded. These 2 points are grounded. Let me call these 2 points as A and B. The points A and B are grounded. So this is the circuit you have got. What do you have to find? Find current through 6 ohm resistance. Find current through 6 ohm resistance. Okay, कैसे निकालोगे current through 6 ohm resistance? Definitely this will be the current going like this. कैसे निकालोगे? Okay, this is in series with that one. No, we cannot say because this one is also there, this one is also there. This two are in parallel, we cannot say because 8 ohm is there. This two are in parallel, we cannot say because 2 ohm is there. क्या करेंगे अभी सर्किट को? ओके, अच्छी तरह से सोचो, पॉज कर लो वीडियो पॉज करके खुद करने के लिए कोशिश करो, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अब इस सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सिंपल है। हम अगर ऊपर साइड में देखेंगे तो सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका रिजल्ट निकालना बड़ा मुश्किल होगा। इस तरह डेल्टा सिमेट्री में फिर जाना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोगों ने कैपेसिटर्स में प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों पॉइंट ग्राउंडेड है, ये दोनों पॉइंट ग्राउंडेड है, मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 0। ए का भी पोटेंशियल 0 है और बी का भी पोटेंशियल 0 है, यानी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। तो हम लोग का लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो गया। लेट मी स्टार्ट विथ ए। व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए? 0। ओके, then let me cross the battery, positive to negative, drop. What is the drop? 12. So 0, that is a matlab 0 minus 12. Then I am crossing this resistance, going against current. Current flows from high to low, I am going from low to high. So across resistor there will be potential rise. कितना? 6i. Where I have reached point B. B का potential कितना है? 0 है। तो कितना मिला? I is equal to 2 ampere. That's all. Problem solved. Understood? Okay. अब another problem देखो इसमें। Another circuit. 6 ohm. ध्यान का साथ देखना। Okay. 17, ये 4 ओम है, ये 17 ओम है, एंड दिस इज 21 ओम। क्लियर? इसमें एक रेजिस्टर है, देयर इज सम बैटरी। दिस साइड यू हैव अ सर्किट, अगेन देयर इज 1 ओम, 6 volt. This is 2 ohm, this is 12 volt, this is 6 volt, this is 6 volt, and finally there is a 12 volt battery here. And this circuit, what we have to find? Find current and potential drop across 6 ohm resistance, ये वाला across this resistance। ओके, हमें क्या निकालना है? करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप। ये सारा प्रॉब्लम हाथी जैसा है, मतलब सर
दिखाने का कुछ, खाने का कुछ। देखने में प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे सॉल्व करेंगे? तुम पहले ट्राई करो, तुम लोग पहले ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, फिर कोशिश करो। ओके, और नहीं कर पाया तो सॉल्यूशन तो है ही, आ ही जाएगा। ओके, टेंशन क्यों लेते हो, सब एक सर है ना। गुड। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। चलो, ये एक पार्टिकुलर लूप है, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, ये एक पार्टिकुलर लूप है। इस लूप को कंसीडर कर लेते हैं। 6 ओम, 4 ओम, 12 वोल्ट। अगर मैं इस लूप को कंसीडर कर लूँ, बन गया। यहाँ से शुरू करो, इस पॉइंट से शुरू करो। ओके, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। चलो, ए से शुरू करते, कहाँ तक जाना है? बी तक जाना है। करंट कितना है? सपोज करंट इज आई। If this is I, the current will be I also here, because this store in series, directly series, same current will pass. तो कितना हो गया? If I go from here, okay, A से वापस A तक आना है, net potential difference will become 0. तो across the 6 ohm, there is -6 sign. Why? Because current flows from high to low, so we are going from high to low. There is a drop. Again, there is a further drop, 4i. Again, we go from negative to positive. There is an increase. कितना increase? 12 is equal to 0. I started from A, return back to A. Kirchhoff's voltage rule. तो कितना मिल गया? 10I is equal to 12. So I is nothing but 1.2 ampere. Therefore, potential drop across 6 volt. Potential drop across 6 ohm. कितना होगा? Current into resistance. Current 1.2. Resistance 6 ohm. Okay. So 7.2 volt, that is the potential drop across, okay, 6 ohm resistor. Okay, इसलिए घबराना नहीं है. You need the confidence and you keep on solving. Okay, with a cool mind, the solutions will keep on coming automatically. अब हम कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स में ये सर्किट बहुत सॉल्व किया है ना. ये वाला सर्किट देखो, ये वाला सर्किट जिसमें हम लोग कहा कि ह्यूस्टन ब्रिज है. ओके, ह्यूस्टन ब्रिज निकाल के हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, और इस सर्किट को दोबारा लाते हैं. ये 6 ओम, दिस इज 5 ओम, 12 ओम, 4 ओम, this is 2 ohm, and this battery is suppose 10 volt. ओके, सो हमें निकालना है फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस. आप 6 ओम, 2 ओम निकालो, 12 ओम निकालो. ओके, फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस. फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस. कैसे करेंगे अभी? हाउ विल डू इट? सोचो, आप खुद कोशिश करो. ओके, दिस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ, बी कहता हूँ. लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज सी एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज डी. सो वी हैव टू फाइंड आउट अ करंट along the arm CD in which there is a 5 ohm resistance is present. ओके, हम इस सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं टू मेक इट लुक सिंपल. पहले मैं ड्रॉ करता हूँ ए एंड बी. ए और बी के बीच में ओके एक बैटरी है. कितना वोल्ट का? 10 वोल्ट. ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल. पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट. ओके, उसका बाद देखते हैं क्या देखोगे सर. उसका बाद ए इज कनेक्टेड टू सी. ए और सी के बीच में एक रेजिस्टर्स है. आप अगर आज अच्छी तरह से देखोगे, ए और सी के बीच में, सी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में, ए और डी के बीच में, सी और डी के बीच में. तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? एक ह्यूस्टन ब्रिज मिल जाएगा. देखो किस तरह से मैं करता हूँ. दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज ए, मतलब दिस इज ऑल्सो ए. ओके, लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली ए. सो फ्रॉम ए टू सी, ओके, फ्रॉम ए टू सी one resistor. From C to B, this point is B, मतलब यही B, इसको हम B ले लेते हैं. From C to B there is a resistor. Again from A to D, from A to D there is a resistors.
and from D to B there is another resistors. Okay, again from C to D there is one more resistors. Okay, between A and C कहाँ है? A C कितना है? 4 ohm. Okay, between A and D कितना है? 2 ohm. ठीक है, between B and C कितना है? Between B and C 12 ohm. and between B and D कितना है? 6 ohm. अब ये बैलेंस है ह्यूस्टन ब्रिज 4/2 is equal to 12/6. so this is a balanced ह्यूस्टन ब्रिज. अगर ये बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज है तो अक्रॉस 5 ohm नो करंट विल बी फ्लोइंग. इसमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. आया समझ में बच्चों? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये क्या बन गया? बैलेंस्ड ह्यूस्टन ब्रिज 4/2 is equal to 2. Similarly 12/6 is also equal to 2. so यहाँ पर P/Q is equal to R/S. रेशियो वैलिड हो गया. क्या हो गया? वैलिड हो गया. अगर ये वैलिड है तो अक्रॉस बिटवीन पॉइंट C एंड पॉइंट D विल हैव सेम पोटेंशियल. इसकी बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस की थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा. इसलिए आंसर कितना है? करंट थ्रू द 5 ohm रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू 0. ओके, कमेंट करके जरूर बताना समझ में आया या नहीं आया. ठीक है, तुम्हारा फीडबैक बहुत जरूरी है. एक दूसरा सर्किट सॉल्व करते हैं. पार्ट ऑफ ए नेटवर्क इज कंसीडर्ड. फुल नेटवर्क नहीं है, पार्ट ऑफ ए नेटवर्क. ये ग्राउंडेड है. पॉइंट B है. दिस इज 4 ohm, दिस इज 2 ohm. current going is I1. this side current going is I2. this is 2 ohm and here current is shown as I. current is shown as I. this is a switch S. this is grounded. here potential is equal to 0. क्या निकालना है? find. क्या निकालना है? find current through the switch S when it is closed. अगर हम इसको बंद कर देंगे तो इसके बीच में से कितना करंट जाएगा? अगर मैं इस करंट को I1 कहूँ, इसको I2 कहूँ, देन I1 प्लस I2 फाइनली विल फ्लो डाउन. ओके, जब तक अगर यहाँ पर I1 एंड I2 दिखा दिया गया डायग्राम में था, लेकिन याद रखो जब तक हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे ये करंट और ये करंट अलग नहीं होगा. अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करके रखूँगा तो करंट ये डायरेक्शन में नहीं तो ये डायरेक्शन में फ्लो होगा. ओके, दोनों डायरेक्शन से करंट नहीं आएगा. अगर ये मैं ज्वाइन कर दूं तो एक तीसरा पॉसिबल पाथ आ जाएगा. तब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि दोनों डायरेक्शन से करंट आके फिर यहाँ से निकल जाएगा. ओके, इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट और इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट. अब इसको सॉल्व करना है हमें. ये सॉल्व करना बिल्कुल आसान है. कैसे सॉल्व करेंगे? चलो मैं इसका सॉल्यूशन ये दिखा देता हूँ. ओके, ए टू ग्राउंड इसको ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करने के बाद सपोज मैं ज्वाइन कर दिया तो देखो मैंने ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करने के बाद ये वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट. ये वोल्टेज कितना है? 0. सो यहाँ से यहाँ आते वक्त देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 20 वोल्ट. सो पोटेंशियल एट ए दैट इज 20. चलो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देयर विल बी अ ड्रॉप. कितना है? माइनस ट्वाइस I1. again going, suppose this current is I is nothing but I1 plus I2. okay, again there will be a drop is what? Twice I. okay, minus twice I की जगह में मैं लिखूंगा I1 plus I2. where we have reached? at a ground. पोटेंशियल कितना है? 0 है. तो मैं इस इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई करूँ, twice I1 20 minus 2I1 that is 4I1 minus twice I2 is equal to 0. ये हो गया तुम्हारा पहला. अगर मैं ये साइड से आऊँगा तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? व्हाट इज द पोटेंशियल हियर? 10 वोल्ट. इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देयर विल बी अ ड्रॉप. ड्रॉप कितना है? 4I2. अगेन देयर विल बी अ ड्रॉप ट्वाइस I. कितना है ड्रॉप? ट्वाइस I. I का मतलब I1 plus I2 इक्वल टू 0.
सो कितना मिल गया 10 माइनस 4i2 माइनस ट्वाइस i2 इज इक्वल टू 6i2 माइनस ट्वाइस i1 इज इक्वल टू 0। कितना इक्वेशन मिला 2 इक्वेशंस मिला। कितना अननोन से i1 i2 i1 i2 ओके इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो 5 माइनस 3i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 बना दो ओके इसको इक्वेशन 1 बना दो। फ्रॉम 1 and 2 यू गेट अ वैल्यू ऑफ i1 एंड i2 ओके क्यों क्योंकि current that will flow through the switch when it is closed is nothing but i1 plus i2 okay current passing through the switch कितना है current passing through the switch कितना है i1 plus i2 ठीक है। इसका वैल्यू खुद निकालो और इसको सॉल्व करो। और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ठीक है। Let me take a simple circuit. Don't have to get scared seeing the diagrams. Okay. इस टाइप का एक सर्किट है 1 ohm 3 ohm 3 volt 1 volt ये 1 है 1 volt फिर this is 2 ohm this is 2 volt this is 1 volt this is 1 ohm फिर बीच में से एक है there is a resistance of 2 ohm there is a resistance of 2 ohm ओके इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है इसमें हमें क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। इसमें काम करते हैं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and D between the point B ये पॉइंट है B this particular point is A this is B this is C and this is D that means we have to find out the current across BD across BD हमें current मिल गया तो हमें potential difference भी मिल गया ओके और you can find potential difference between A and B। इस 2 ohm को हम इसका इंटरनल अगर इक्वेशन में मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज अ 2 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm ऐसे भी हो सकता है। दिस कैन बी अ बैटरी ऑफ 1 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm ऐसे भी हो सकता है ओके अच्छा अब क्वेश्चन डायग्राम में ये डायरेक्ट दे दिया 2 ohm 1 ohm अब हमें जरूरत नहीं एक्सटर्नल है या इंटरनल है ओके ये है तो हम इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर 1 वोल्ट है यहाँ पर 2 वोल्ट है ओके सो ये अगर पार्टिकुलर लूप ले लोगे एक पार्टिकुलर लूप कंसीडर करोगे तो यहाँ पर लगता है 2 वोल्ट विल डोमिनेट 1 वोल्ट ठीक है 3 वोल्ट ओके 2 वोल्ट इन दिस बिगर लूप अगर कंसीडर करोगे बोथ आर ट्राइंग टू ड्रॉ द करंट एंटी क्लॉकवाइज दिस 1 वोल्ट एंड 1 वोल्ट दे आर ट्राइंग टू ड्रॉ द करंट इन क्लॉकवाइज। खैर कोई बात नहीं अगर हम इस लूप को इस तरह से कंसीडर कर लें let me call this direction to be positive then I can start it from here suppose the current is flowing here same current will flow there I let me call the current here is I1 and current here is I2 I2 will go I'll go and they'll get joined। अब मैंने करंट का डायरेक्शन I को मैंने ये डायरेक्शन में लिया है जरूरी नहीं कि डायरेक्शन ये I होगा अगर मैंने जो डायरेक्शन लिया वो गलत है तो I का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो मुझे एक लूप बनाना है लूप कौन सा लूप ले लूँ मैं ले लेता हूँ A B D A A B D A ये लूप ले लेते हैं
कहाँ से शुरू करते हैं? चलो ए से शुरू करते हैं, वापस ए तक आ जाएंगे। ए से शुरू करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, आई विल बी लिटिल फास्ट, पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉप -2, okay, current flows from high to low, we are coming this way. अच्छा, there is a resistance here, current flows from high to low, we are going against current, so twice I plus twice I. Here we are going against the current, plus twice I1. Then we are going against the current, plus 1 into I, that is I only. Okay, we go from negative to positive, again there is a rise, again there is a increase, negative to positive there is an increase in potential, plus 1 volt. Where we reached? Point A, this is equal to 0. ये I है और ये 1 है। दोबारा वेरीफाई करते हैं। We are starting from A, positive negative, there is a drop, okay, against current there is a rise, against current there is a rise, against current there is a rise, okay, I is coming, so here current is I into 1 I, again there is increase negative to positive of 1 volt, okay, so -2 plus 1 will give you -1, 2I plus I will give you 3I plus twice I1 is equal to 0, okay, इसमें कितना अननोन है? 3 अननोन है, ओके, सो तुम्हें 3 इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा पहला लूप, ओके, दूसरा लूप कौन सा बनाओगे? सो लेट अस मेक अनदर लूप, इसको मैं ले लेता हूँ, ये थोड़ा लंबा बनेगा, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सो फिर दोबारा दूसरा लूप कौन सा लोगे? B C D B, B C D B, ओके, किरचॉफ लूप रूल का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। B C D B, इस लूप में जाते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट B, नेगेटिव टू पॉजिटिव देयर इज अ इंक्रीज 1, अगेंस्ट करंट देयर इज अ इंक्रीज प्लस resistance is ohm, current is how much? I2, that is I2, okay, 1 into I2 across this one, then again 3 into I2, then from positive to negative there is a drop -3, then again we are going in the, from here we will go in the direction of current, in the direction of current there is a drop, -2 I1 is equal to 0. We have started from B, negative to positive increase, against current increase, against current increase, positive to negative there is a drop, along the direction of current there will be a drop. So finally we have returned back to the same point, total potential difference will become equal to 0. So 3 plus 1 4 I2 minus 4 I2 minus twice I1 minus 2 is equal to 0. हो गया? कितना इक्वेशन बन गया? ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है, और एक इक्वेशन चाहिए, ओके, उस इक्वेशन के लिए हम फुल लूप को कंसीडर कर लेते हैं। लूप A B C D A, फुल लूप, ओके, पॉइंट A से शुरू करो। A, पॉजिटिव टू नेगेटिव देयर इज अ ड्रॉप, against current there is a rise, negative to positive plus 1, against current there is a rise, 1 into I2, against, across 3 ohm against current, rise plus 3 I2, positive to negative there is a drop, -3, and when you're going from here to here you have to go and reach point A. When you're going here against current there will be increase. What is the increase? Plus 1 into I, 1 into I. Then you're going from negative to positive and there is a increase, plus 1. Where we have reached? Point A. So we have started from A, we have returned back to A, total potential difference will have to be equal to 0. ये बन के हम लोग का तीसरा इक्वेशन, ओके, ये कितना बन गया हम लोग का तीसरा इक्वेशन? देखो, -3 -2 -5 plus 1 is -4, twice I1
ट्वाइस अच्छा ट्वाइस आई, let me use small I, twice I, 1I, 3I plus 3I. Okay. This is gone, this is gone, this is gone, this one gone, this one gone. Achha, there is 1 here again. Okay, so 1 plus 1, 2, 2 to cancel, minus 3. Okay, there is I2, 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 3 plus 1, 4, 4 I2. And plus as I has gone there, I1 is there, I1 is not there, so this is 0. So you've got 3 equations. First equation between I and I1, second equation I1 I2, third equation I and I2. अब ये 3 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. You are getting the value of I1, you are getting the value of I2, you are getting the value of I3. ओके और ये खास करके ये पार्टिकुलर क्वेश्चन में you have to find out the potential difference between B and D. Okay, potential difference B and D. D will be at higher potential, B will be at lower potential because current flows from high to low. Okay, अगर हम BD लिखेंगे तो मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा. कितना है? Twice I1 current into resistance. इसलिए तुम्हें I1 निकालना है. ओके, I1 निकाल के इसमें डाल दो. अगर यहाँ पर यहाँ सॉल्व करके